बात कर रहे थे या फिर बात कर रहे थे रिगार्डिंग, अगर देखा जाए तो स्पोर्ट्स इंडस्ट्री का भी सेम वही चीज हुआ है कि आजकल डिजिटलाइजेशन हो गया। आजकल लोग मोबाइल में लूडो किंग जैसे अब टॉप पे चल गए हैं, या फिर पबजी तो पहले ही से टॉप पे मतलब था ही। तो लोग डिजिटली थोड़ी से हो गए, मतलब फोकस किया है। वहीं पर दूसरे सेक्टर्स पर अगर देखते हैं, स्पोर्ट जो चीज है वो बेसिकली फिजिकली एक्टिव हो सकती है। आप कितना भी घर में बैठ के खेल लो, उसके अगर आप फिजिकल बाहर जाके नहीं खेलते, उस पर डिपेंडेंसी तो रहेगी, और वही मेन चीज हमारा था। और बात करें आईपीएल या फिर डिफरेंट क्रिकेट सेशन, इसके गाड़ी है काफी क्रिकेटर्स पे इसका इफेक्ट पड़ा है। जैसे सॉकर लीग हुआ, इंडिया में धीरे धीरे बहुत ज्यादा भाग बन रहा था स्पोर्ट्स। तो वहां पे जो बड़े प्लेयर्स का तो उतना इम्पैक्ट नहीं पड़ा है, बट जो छोटे जितने प्लेयर्स थे उनका जॉब कट हो गया। वो भी मतलब एक अलग रिसेशन पे चले गए हैं, उनका अर्निंग नहीं हो पा रही है। बड़े बड़े जो क्रिकेटर उन्होंने तो काफी वहां कर लिया है। तो उनके लिए भी ये चीज देखना है कि किस तरह से वो स्टार्ट करते हैं। अभी ये भी शुरू होने वाला था कि केवल क्रिकेटर्स वहां पे मैच खेलेंगे, और जितने भी आपकी टेलीकास्टिंग जो होगी वो सीधा आपके घर पे होगी, आपके मोबाइल पे होगी, या फिर आपके लैपटॉप पे होगी। ठीक है, डायरेक्ट टू होम वो जाएगा, और फील्ड में कोई नहीं आ पाएगा। ऐसी हर एक सारी चीजें हो रही हैं, बट इसका काफी इंपॉर्टेंट रहेगा कि देखना ये किस तरह से स्पोर्ट्स होता है, क्योंकि अब हर एक चीज आजकल बंद है, और बिना फिजिकल एक्टिविटी किए हुए मतलब कोई भी अभी रह नहीं सकता है सर। क्या दैट्स इट। Okay. ठीक है. Paritosh has also joined. Paritosh, what do Yeah. you think? Sports industry. Yes, Vishal. Yes, rightly put. Can you hear me, Vishal? Yeah. Yes. 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 So in sports, like what some countries outside, what they are doing is sportsmen are playing their game with no audience, and instead of audience, they are putting standees so that they get a feel that people are watching them, and they have even put speakers for making sound of clapping, so to boost sports person's morale. And this is how people are changing in other countries, and it is getting live telecast, of course. Yeah. Live telecast might be the current Yeah, way. but Mhm. yes. Yeah, and then we are talking also about this digital sports also, mobile sports. Ludo King Yeah. became one Yeah, famous. mobile sports that is there, but I don't think. I mean, it's just a fad for some certain uh, uh, group of individuals. I mean, who are into mobile games only. They would be more pulled towards it. But what I see is कि the live sports का जो feeling है, that is the outdoor sports, the zeal for which we play, the energy, the that it creates, that cannot be converted into digital. So for Mhm. that to experience that, either if you are a sports person, then of course you can. They would come up with some solution like others are doing. Only sports person and media persons would be present in the ground, and they would be conducting. Still, it is challenging because the transportation of sports person is a big issue. How will will the sports person risk to travel to different destination and to play games? That is another big question. People, sports person might not want to. Uh, Yeah. I mean, so there are various loopholes how they are going to continue this, because it cannot be actually totally converted into digital. There is no way. We cannot bring that energy level that is present in the ground to the digital media. Mhm. Sure. So I think one big bottleneck is the traveling. Sports people used to travel so much. It was pretty much like a world tour Yes, in different countries yes, without that is a matches. big And factor. Yeah. yeah. Yes, uh, Abhishek, you want to say something? यस, yeah. हम बोलना चाह रहे थे कि वो तो प्रॉब्लम आया ही है, और बिग प्रॉब्लम ये भी आया होगा कि उन लोगों का प्रैक्टिस छूट गया है।
या स्पोर्ट्स हुआ या एजुकेशन हुआ, प्रैक्टिस बहुत बड़ा चीज होता है। आप कितना भी बड़ा प्लेयर हो, कंटिन्यूअस 2-3 महीना आप नहीं खेलिएगा और उसके बाद आपको एक बार ग्राउंड में उतारा जाए तो बहुत तरह का प्रॉब्लम आएगा। सेकंड प्रॉब्लम क्या है कि जो वो बोला जा रहा है कि ऑडियंस नहीं रहेगा, तो वो जब से मैच खेल रहे हैं उनको एक आदत सा बन चुका है कि हजारों लाखों ऑडियंस के बीच में खेलने का शोर शराबा हो रहा है, तो उस टाइप का एक एनर्जी मिलता है कि हाँ भाई देश का जो झंडा लहरा रहा है तो अपने देश के लिए क्या खेलना है, तो वो एनर्जी आप कहाँ से ला पाएंगे। तो आई थिंक मुश्किल वक्त होगा कि आप एक स्टेडियम में 100-200 आदमी के बीच में मैच कराना, उसके बाद 3 महीने से बैठे हुए हैं, एक बार आप उसको उतार दीजिएगा। प्रैक्टिस का भी बहुत सारा प्रॉब्लम आएगा उन लोगों को। सही बात। और ये सिर्फ स्पोर्ट्स पर्सन, आई मीन नेशनल लेवल स्टेट लेवल के स्पोर्ट्स पर्सन का बात नहीं है। इवन ग्राउंड लेवल पे, स्कूल लेवल पे जो स्पोर्ट्स इंस्टीट्यूट होती है, जो बैडमिंटन कोर्ट हो गया सोसाइटी में, या फिर जो स्विमिंग क्लासेस हो गए, फुटबॉल क्लासेस हो गए, सब एवरीथिंग इज क्लोज्ड in cities. So those businesses have been impacted a lot. कोई बच्चों को नहीं भेजना चाह रहे हैं to learn football or tennis, or everything is stopped. Everything has stopped. तो और सारे co-curricular और आईपीएल में भी देखिए बहुत सारे नया प्लेयर को मौका भी मिलता था, तो मतलब एक साल तो मिनिमम पीछे चला गया देश, क्योंकि सिंगल न्यू प्लेयर को भी मौका मिलता तो उसका चांस तो मिस हो गया, और उसे बहुत सारा इंडियन इकोनॉमी को पैसा भी आता था, वो सारा खत्म हो गया। तो लॉस तो हुआ है। स्पोर्ट्स भी एक बहुत बड़ा मार्केट था, एडवर्टाइजमेंट से लेकर बहुत सारा चीज हुआ, ठीक है, क्योंकि जो भी स्टेडियम उसको तो मेंटेन करना पड़ता होगा, और भी स्पोर्ट्स पर्सन है उसको तो पेमेंट देना होता होगा, उसके लिए ऐड आता था, वो सारा तो वो बंद हो गया, फ्री में वो पेमेंट ले रहे होंगे, तो लॉस तो हुआ है, बहुत लार्ज लेवल पे हुआ होगा लॉस स्पोर्ट्स में। मिस्टर अली, आपका कुछ कमेंट स्पोर्ट्स इंडस्ट्री पे? और अतुल सर, आप बताइए कुछ स्पोर्ट्स को कुछ छूट रहा है हमसे? बहुत सारी चीजें तो कवर हो गई। मेरा ये कहना है ना कि स्पोर्ट्स भी अभी एक तो ऑनलाइन गेम बहुत बड़ा सेक्टर हो गया स्पोर्ट्स का, कि फिजिकल फील्ड के जगह जाने के, एक तो ऑनलाइन गेम है, दूसरा फिजिकल स्पोर्ट्स भी, जैसे लोग जिम में जाते थे, बट कुछ साल पहले, आज से बहुत साल हो गए मुझे, वी फिट स्टार्ट किया था हमने एक्सरसाइज के लिए घर पे, और माइक्रोसॉफ्ट का भी एक्सबॉक्स और बहुत सारे प्रोडक्ट्स आ गए, तो लोग घर पे ही डांस भी कर लेते हैं, स्पोर्ट्स भी खेल लेते हैं, और स्पोर्ट्स करते हैं, ऐसा नहीं कि खाली वो स्क्रीन वाला स्पोर्ट्स, फिजिकली पसीना बहता है, एक्सरसाइज बता है, बहुत सारे इक्विपमेंट ऐसे आ गए हैं कि आप घर बैठे बैठे, आप बैठे टेनिस खेल रहे हो एक शहर में, और आपका दूसरा पार्टनर हो सकता है दूसरे कंट्री में हो, तो इस तरह का जो हर चीज का डिजिटाइजेशन वाला पार्ट हो गया, वर्चुअल रियलिटी आ गया है, इमर्सिव रियलिटी, इस तरह की चीजें आ गई है ना, कि बहुत सारी चीजें आप फिजिकल एक्टिविटीज भी कर सकते हो विद अ ग्लोबल टीम डिजिटल फॉर्मेट्स में। पुराने जमाने में कि आपको फिजिकल एक्टिविटी के लिए आपको बाहर जाके फील्ड में जाके क्रिकेट खेलिए, फुटबॉल के लिए होता था, अभी बहुत सारे लोग अब बैठ कर अपने घर पे कंसोल लगा देते हैं, मॉनिटर लगा लेते हैं, और इक्विपमेंट होता है, जैसे कैसे इस चीज को ज्यादातर लोग जानते हैं जिम का कल्चर तो बाद में आया ना, पहले तो लोग बाहर में जॉगिंग करते थे, टहलते थे, पर जब से जिम का कल्चर आ गया तो लोग घर पे ही एक्सरसाइज कर लेते हैं, अच्छा खासा एक्सरसाइज करते हैं, तो वही जिम कल्चर स्पोर्ट्स में भी उस तरह के बहुत सारी टेक्नोलॉजीज आ रही है। इमर्सिव रियलिटी एक बड़ा बज़वर्ड है, कि आपको पता ही नहीं चलेगा कि आप अलग हैं, और जो डिजिटल वर्ल्ड जो वो दोनों में आपको सिमिलर इमोशंस भी होगा, सिमिलर पसीना भी बहेगा,
एक्सरसाइज भी होगा, सब कुछ होगा। तो स्पोर्ट्स का वो सेक्टर मुझे लगता है सबसे फास्टेस्ट ग्रोइंग सेक्टर अभी ग्रो कर रहा है, और अपॉर्चुनिटी भी बहुत बड़ा है कि उसको कोरोना से सबसे ज्यादा फायदा हुआ कि अब आप बाहर जाके खेल ही नहीं सकते, कुछ नहीं कर सकते हो, तो घर में ही खेल लो। और दूसरी एक और बात है कि सोशलाइजेशन लोग बहुत मिस करते हैं, कि बहुत लोगों को आदत है कि अपने कम्युनिटी में या फ्रेंड्स के साथ उनके साथ बैठ के जाकर गपशप करेंगे, जाकर चाय कॉफी पियेंगे स्टारबक्स में, वो तो हट गया। बट वो ऑनलाइन वर्ल्ड में साथ में वो लोग गपशप भी कर रहे थे, जैसे हम लोग को अभी जूम कॉल कर रहे हैं, बट बहुत सारे लोग मिलते थे टेनिस कोर्ट पे या क्रिकेट कोर्ट पे या फुटबॉल सॉकर कोर्ट पे, तो सॉकर के मैदान पे, तो वो मीटिंग अब बहुत सारा उसका एक कंपोनेंट ऑनलाइन गेमिंग कम्युनिटीज काफी वन ऑफ द फास्टेस्ट ग्रोइंग सेक्टर है कि गेमिंग काफी कुछ ऑनलाइन हो रहा है। और ऑनलाइन व्हेन आई एम सेइंग इज नॉट जस्ट सॉफ्टवेयर वाला ऑनलाइन, एज कि विद इक्विपमेंट एंड हार्डवेयर वाला ऑनलाइन गेम हो गया। आई थिंक दैट्स अ ह्यूज अपॉर्चुनिटी। सिमुलेशन काइंड ऑफ गेम, एक्सबॉक्स एंड थिंग्स। हाँ, सिमुलेशन और थोड़ा बहुत रियलिटी भी, कि मैं अगर जैसे कि टेनिस का मैं बताता हूँ कि कुछ साल पहले, आज से 10 साल पहले जब भी आया था, वी खेलता था तो मेनली तो एक्सरसाइज के लिए, बट उसमें 6 एक्सरसाइजेस भी थे। हम योगा भी कर सकते थे, वी फिट के थ्रू योगा भी कर सकते थे, वी फिट के थ्रू से टेनिस भी खेलते थे, टेनिस भी था, टेनिस भी एक ऐप था। तो टेनिस खेल रहे थे और मेरे एक दोस्त थे टेनिस के बहुत बड़े शौकीन, तो वो जब घर आए तो साथ में अपना वो रिमोट भी लेकर आएंगे और अपने साथ में टेनिस पे खेलते थे। तो रियली मतलब कि सीरियसली खेलते हैं लोग, सीरियसली यानी कि अपनी रैंकिंग रेटिंग उसमें बढ़ती है। और उसके अलावा सबसे इम्पोर्टेंट बात है कि पसीना बहता है, मोर इम्पोर्टेंटली मसल स्ट्रेंथ यूज होता है। इधर फिजिकली बहुत स्ट्रांग नहीं है तो आप गेम ठीक से खेल नहीं पाओगे, तो आपका मसल फ्लेक्सिबिलिटी जो भी किसी भी स्पोर्ट्स में होता है कि आपका मसल टोन कैसा है, आपका बॉडी फ्लेक्सिबल है कि नहीं, आप कितना मूवमेंट कितना शार्प है, तो ये सारी चीजें भी यूज हो जाती हैं। तो कहाँ फिजिकल कहाँ डिजिटल, वो बाउंड्री ही बहुत मिक्स हो रहा है, इसीलिए इसको मिक्स रियलिटी भी बहुत लोग बोलते हैं। अब वर्चुअल रियलिटी नहीं रहा, डिजिटल रियलिटी हो गया था, अब उसकी जगह मिक्स रियलिटी हो गया। और उस मिक्स रियलिटी पे किसी को भी सर्च करना करेंगे तो बहुत सारी स्पोर्ट्स आ गए जो कि मिक्स रियलिटी में लोग खेल रहे हैं कि सेजल, व्हाट्स हैपनिंग विद योर कॉलेज? तुम्हारा तो कॉलेज कोविड सेंटर बन गया बेटा। अच्छा, और रवि वांट्स टू से यस, रवि बताओ। Sports or games Voice is not so clear. not clear. Is it clear now? नहीं, I think maybe exit and enter. Just give me. हाँ, अभी ठीक है, अभी ठीक है, अभी ठीक है। Is it clear now? Yeah. Yeah. So sports, games and sports. This is one of the industry which has a collaborations of industries. Let's say sports events when being conducted, it's not only the player or the audience who come together. The supply chain industry involves in it, the hospitality industry involves in it, food industry involves in these segments. And as you know, there's 2 major events which is stopped just due to this COVID-19. One is रवि, the Olympic. exit and enter once. तो voice change हो जा रहा है, volume level. Okay, I will do that. Yeah. Ujjwal has joined. So Ujjwal, what do you think about sports industry? क्या हो गया अभी लॉकडाउन के चक्कर में हमारे कॉलेज का स्पोर्ट्स एटलीस्ट? Ujjwal is there? Aman, maybe you can add a bit as a comment to that. Yeah. Okay. Audible? Yes. Yeah. So I was telling that sports as an industry have a merge of 2 or 3-4 industry altogether. So any sports event does take place on a national level or international levels. It involves the hospitality industry, it involves the supply chain industry, food industry, as well as there are a lot of small segments which came into together to conduct an event.
So same as we see due to COVID-19, two major events which is still not happened. One is the Olympic, which was about to happen in Japan 2020. Now it has moved forward to 2021, and IPL for India, which is altogether big sports events which has a lot of circulation of money in the market. Due to this, the kind of talk which we were making in previous time regarding education industry and all those industries, but this industry has a value in terms of time. Let's say an event which was about to happen in 2020 and it unable to happen, so it cannot be happen next year. Let's say Olympic is happening in 2021. Okay, it's only because it is not it is cycled with 4 years of time. But the events which is on year basis, let's say IPL used to happen on year basis, so next year IPL will be there, but for 2020 IPL is not there, so that will be a loss altogether to the sports industry as well as the industries associated to it. So sports have that kind of influence or that kind of impact on industries himself as well as the itself and as well as the associated industries. Okay. Yeah, Ujjwal is there. Ujjwal now. Ujjwal. Am I audible now? Yeah. Yeah. Or, okay. So this is one Initiation. impact which is happening in sports industry right now due to COVID-19, because this is one industry which requires the gathering the most. Because the player underline depends on the audience cheer up. I think you're getting muted every time. Actually, I'm getting a call, so I'll come back. Let me attend that call, and then I will come back. Others can discuss. Okay. Okay, Ujjwal, are you there, Ujjwal? Yes, Ujjwal. Yes, सर मैं थोड़ी देर में आऊंगा. एक्चुअली मैं कुछ खा रहा हूँ. So not late. ओके, ठीक है. एक और टॉपिक पे बात करते हैं तब तक. आई थिंक वी कैन कम बैक टू स्पोर्ट्स आल्सो लेटर. ये वेडिंग, जो बेचारा लोग शादी होने वाला था, लोगों का मंगनी होने वाला था, एंगेजमेंट होने वाला था, और भी बहुत सारा रस्म रिवाज होने वाला था, सबका 3-4 महीने एटलीस्ट आगे बढ़ गया, या ये साल भर भी आगे बढ़ गया रहता है. तो अभिषेक, क्या हुआ, तुम्हारा भी शादी टूट गया क्या? बताओ. नहीं, मेरा शादी टूटा नहीं, पर जिसका टूटा है वो बेचारा बहुत रो रहा है. अच्छा, बताओ क्या हुआ. और खास करके उसका जिस बेचारा का कभी हो नहीं रहा था और इस साल किसी तरह हुआ था, तो एक बार इंफॉर्मेशन आ गया कि नहीं हो सकता. कहाँ प्लान का बनाया हुआ, सब घूमने जाना है, क्या करना है, सारा एक होता है नहीं, गाना तो दिल कर आंसू में बह गए, वही हाल हो गया. तो बहुत बुरा हुआ है शादी वाले. खास करके लड़का का तो मतलब सही है, जिसका लड़की लोगों का मतलब जितना पैसा इकट्ठा करके सब किया हुआ है, उसके बाद करेक्ट. एक्चुअली बहुत सारे लोगों ने वो वेडिंग हॉल या होटल या बारात और उसके साथ मतलब जो भी उसके साथ जुड़ा रहता है, जैसे हलवाई वाला या बहुत सारे पंडित तो पिटाया होगा इस बार. पंडित तो पिटाया होगा जो शुभ मुहूर्त निकाला होगा कोविड के टाइम. पंडित क्या पिटाएगा, हम लोग तो बचपन से पढ़ते थे कि कोई गरीब ब्राह्मण रहता था, तो वो ब्राह्मण को तो हमेशा से गरीब ही दिखलाया गया, तो गरीब को कोई क्या मारेगा. ठीक है, इसको और थोड़ा बात कर. सेजल, यस, व्हाट डू यू थिंक, क्या हुआ तुम्हारे आसपास? कुछ हुआ शादी वादी को लेके? सेजल, आर यू देयर? तो मिस्टर विनीत, आप बताइए, ये जो शादी वादी हो रहा था, एन एसेंशियल थिंग प्रीटी मच,
रुक गया तो लाइक सेजल इज बैक ओके सेजल इज वेटिंग पे यस व्हाट योर सर कमेंट हाँ मैंने इवेंट मैनेजमेंट कंपनी में काम किया है तो मतलब हमें काफी ज्यादा लॉस सफर करना पड़ा क्योंकि हमारे जो कॉन्ट्रैक्ट्स थे एंड वी हैव टू रिफंड और जो होटल्स वाले थे जो रिजॉर्ट्स वाले थे उन्हें भी काफी लॉस हो गया आज डाल रहे हैं वो हम कुछ और करने पे डाल रहे हैं फॉर अ टाइम नहीं कुछ पीरियड के लिए कहीं और अपना वो शिफ्ट करके वहां से प्रॉफिट अर्न कर रहे क्योंकि शायद लोग उतना इन्वेस्ट नहीं करें और मेरे आसपास तो मैं शादी कर भी रही और ये शादी का सीजन था ना अप्रैल में कुछ स्टेप्स है सर शादी अलाउड है और लोग शादी कर भी रहे हैं ऑब्वियसली उनके लिए तो एडवांटेज ही है कि उनका बहुत सारा खर्चा बच गया क्योंकि 50 लोगों में और 300 लोगों में या मोर देन दैट बहुत ज्यादा डिफरेंस होता है तो शादियां हो रही हैं तो इवेंट मैनेजमेंट की जो कंपनीज हैं उन्हें काफी ज्यादा लॉस है और उन्हें लॉस तब तक रहेगा जब तक क्राउड आप कहीं भी इकट्ठा नहीं कर सकते हो तो अभी तो वो लोग काफी लॉस सफर तो और इवेंट मैनेजमेंट कंपनी बहुत सारी जगह अपना इन्वेस्टमेंट डाल के दे कैन गेट प्रॉफिट क्योंकि जहाँ मैनेजमेंट की बात आ जाती है वहां तो इंसान कहीं ना कहीं से कुछ ना कुछ निकाल लेता है और इवेंट मैनेजमेंट में बहुत ज्यादा लॉस कह भी सकते हैं बट इनका जो मटेरियल होता है वो काफी टाइम तक यूज होता है मतलब ठीक है हम हर शादी के अलग से हर मटेरियल के पैसे लेते हैं बट हर बार वो मटेरियल नया नहीं होता है तो हाँ कहीं ना कहीं थोड़ा सा लॉस कम हो रहा है इस वजह से बट बहुत लॉस है तो इसका सिर्फ एक ही सोल्यूशन है कि आप थोड़े टाइम के लिए अपना जो फोकस है वो शिफ्ट कर लो फ्रॉम शादी टू अनदर थिंग तो शायद हम प्रॉफिट कमा पाए बट उसके अलावा तो कोई सॉल्यूशन नहीं ये तो सिर्फ तुमने इवेंट मैनेजमेंट के लिए बोल दिया ना किसी ने मैरिज हॉल ही बना के रखा है शादी के लिए डेडिकेटेड जगह है वो या यूजुअली होटल्स वगैरह में सर तो वो कोविड सेंटर में दान कर दे हाँ फिर पता नहीं कोई शादी भी करेगा कि नहीं वहाँ पे हाँ सर ये बात भी है बट फिर भी सर आपको पता है मतलब जिस सिटी में मैं रहती हूँ यहाँ पे कोरोना इज अ बिजनेस मतलब इट्स नॉट प्रैक्टिकली पॉसिबल कि एक दिन कोई इंसान कोरोना पॉजिटिव निकलता है एंड जस्ट विद इन 3 days वो कोरोना नेगेटिव हो जाता है एक्चुअली 8200 या अप्रॉक्स अमाउंट है ऐसे कुछ जो आता है कोरोना पेशेंट आवाज तुम्हारी थोड़ी ब्रेक हो रही है I think like सेजल ने बोला कि कोरोना एक बिजनेस हो गया है या रादर क्या बोलेंगे से निकलने के लिए या हेलो एम आई ऑडिबल ये नाउ यू आर ऑडिबल हेलो हाँ बोलो यस यू आर ऑडिबल तो सर यही है कि कोरोना भी लोगों के लिए बिजनेस बन गया है और वो जो 8200 नहीं सही बात है बिजनेस तो बन ही गया है आई गेस इसमें एक ये बड़ा चीज है कि जैसा मैंने सुना या पढ़ा कि से 1000 में से अगर एक टेस्ट भी गलत हो गया किसी कारण से तो 1000 में एक इंसान पॉजिटिव का नेगेटिव या नेगेटिव का पॉजिटिव होना पॉसिबल है राइट और वैसे जोड़ा जाए तो फिर अब तो लाखों करोड़ों टेस्ट होंगे तो कितने सारे मिस्टेक्स हो सकते हैं उस तरह से तो वहाँ पे आई डोंट नो आई मीन लॉट ऑफ पीपल माइट बी गोइंग फॉर रीटेस्टिंग and might be tested several times within a short span of time. तो per test जो खर्चा है ये है वो है. I think yes Sajid.
You agree to this? हाँ सर, मैं Mhm. अचानक से मतलब 30 पेशेंट्स थे और नेक्स्ट डे इट इज 0. Mhm. It's like we are shifting to orange zone, next day we are in green zone, फिर से orange, फिर से green. तो ऐसा है कि ऐसा खिला के जोन का कलर चेंज हो रहा है। हाँ sir, I don't know. जेल जैसा हो गया, राइट? केस जैसा, केस हुआ है, केस को रफा दफा करो। कोरोना का केस भी I रफा mean, दफा और होता जा रहा ये purely corruption ही है. है। हाँ, क्योंकि सर एक रिपोर्ट आने 4 दिन लग जाते हैं और उतने में तो लोग नेगेटिव प्रूव हो जाते हैं. सर आप पर प्लीज इसका एक अलग सा डायरेक्शन भी है, बहुत सारे नेगेटिव वाले पॉजिटिव भी हो जाते होंगे और उनको जबरदस्ती मुर्गा जैसे कटता है कैसे, जबरदस्ती निकाल के काट दो वैसा कुछ भी होता होगा कुछ लोगों के साथ, आई गेस। स्पेशली जो Yes, sir. कोविड के नियर एंड डियर वंस है, तो घर में रहते हैं, हाँ तुमको भी है, तुमको भी है, सबको पकड़ो, सबको जेल में डालो वो एक चीज भी है। अच्छा, अभिषेक से पूछते हैं। अभिषेक, व्हाट डू यू थिंक, ऐसा कुछ हो सकता है पूरा का पूरा क्राउड को ही पकड़ के डाल दिया जाए कि चलो कोरोना है तुमको? अभिषेक आदित्य, क्या क्वेश्चन क्या है विशाल? क्वेश्चन ये है कि नकली टेस्ट या नकली रिजल्ट भी हो रहा है कोरोना का भी, इसका मिसयूज हो जा रहा है, राइट? मोनेटाइजेशन में इसका करप्शन हो जा रहा है। बहुत बड़ा हो रहा है, बहुत बड़ा हो रहा है। तो मैं बताता हूँ, एग्जांपल देता हूँ। बहुत सारे व्हाट्सएप और टेलीग्राम ग्रुप और फेसबुक ग्रुप खुल रहे हैं। हर आदमी कोरोना का ऐप बना, कोरोना का किट बना रहा है, कोरोना का इलाज दे रहा है, बट ज्यादातर नकली। और सबसे मेरा यही सवाल होता है जो इन सारे ग्रुपों कि भैया आप अगर जेन्युइन कुछ कोरोना के लिए कुछ बना रहे हो, चाहे मास्क बना रहे हो, चाहे एंटीबॉडी बना रहे हो, दवा बना रहे हो, आप अपना एक वेबसाइट शेयर कीजिए ताकि पता चले कि आपकी कंपनी है कौन, कंपनी के ओनर कौन है, मालिक कौन है। तो ज्यादातर लोग भाग जाते हैं, चुप हो जाते हैं। बहुत लोग तो मुझे ग्रुप से भी निकाल देते हैं कि सवाल पूछता है। तो असली जो है ना, मेरा ये कहना है कि देयर हैज टू बी अ वे टू वेरीफाई फॉर इट। जैसे आज मान लीजिए कि इंडिया की कुछ बड़ी बड़ी कंपनीज ने, फार्मा कंपनी, दवा की कंपनी ने, या यूएस की कंपनी मॉडर्ना ने कुछ बनाया, या इंडिया में भी, क्या नाम है इंडिया में, नाम बोल रहा हूँ उस कंपनी का जिसने की कोरोना के लिए दवा निकाला। तो उस कंपनी के बारे में जाकर, हाँ, रामदेव बाबा वाली है? नहीं, रामदेव बाबा नहीं, एक इंडियन फार्मा कंपनी जो कि पार्टनरशिप में, मतलब अमेरिकन कंपनी, बट उसके इंडिया ब्रांच के साथ उन्होंने पार्टनरशिप में कुछ किया है। बट जो भी कंपनी है, रामदेव बाबा भी है, तो हम जाके उनके पतंजलि के वेबसाइट पे देख सकते हैं भैया कि क्या है, गवर्नमेंट का अप्रूवल है कि नहीं। आजकल अप्रूवल और प्रोसेस बहुत इंपॉर्टेंट हो गया है कि किसी भी हर कंट्री में एक तो वहाँ के फार्मा के लिए एक बॉडी होती है जो कि रेगुलेट करती है। इंडिया, यूएस में एफडीए होता है, फेडरल फूड एंड ड्रग एडमिनिस्ट्रेशन, बहुत ही स्ट्रिक्ट है। दवा के लिए नॉर्मली सालों साल लग जाते थे, 7 साल 9 साल। अभी उन्होंने, एफडीए ने कोरोना के चलते एक्सपेडाइट कर दिया कि चलो 1-2 साल में करा देंगे, लेकिन प्रोसेस के थ्रू जाना पड़ेगा। सिमिलरली इंडिया में भी है, बहुत सारे रेगुलेटरी बॉडीज है, तो उस प्रोसेस के थ्रू जाना है। चाहे वो रामदेव बाबा बहुत पावरफुल आदमी है इंडिया में, लेकिन उनको भी बिना अप्रूवल के लिए उन्होंने जो दवा डिक्लेयर किया, जब तक कि बॉडी, रेगुलेटरी बॉडी ने अप्रूव नहीं किया, तब तक उनकी दवा को क्रेडिबल नहीं माना जाता है। और मीडिया तो एक्सपोज भी कर देगी कि रामदेव बाबा अपने चैनल पर जो चाहे दिखा दे, लेकिन अल्टीमेटली जो बाकी सारे जो लोग हैं, न्यूज़पेपर, टीवी, इतने सारे चैनल ऑनलाइन, तो वो लोग तो बता देंगे कि रामदेव बाबा की जो दवा उन्होंने बताया है, आयुर्वेदिक दवा, उसको अभी गवर्नमेंट के रेगुलेटरी बॉडी से अप्रूवल नहीं मिला है। तो वो ट्रांसपेरेंसी आज के जमाने में बहुत आसान है। इफ एनीबॉडी रियली वांट्स टू नो, तो आप पता कर लोगे कि उसको किस गवर्नमेंट के बॉडी ने अप्रूव किया। मान लीजिए कि किसी का पैसा दिला के किसी ने अप्रूव कर दिया, तो वो बॉडी बहुत प्रॉब्लम फंस जाएगी कल को। और तो छोड़िए, इंटरनेशनल बॉडीज, डब्ल्यूएचओ पे भी आजकल सवाल उठ रहा है, क्योंकि डब्ल्यूएचओ ने कोरोना में चाइना के साथ मिलकर, चाइना को बहुत, क्योंकि चाइना को बहुत ज्यादा पैसे लगा रहा था, तो आज डब्ल्यूएचओ हो चाहे कोई लोकल एजेंसी हो, उन सब पे क्वेश्चंस होता है, एंड दे ऑल हैव टू गिव बैक बाय रिजल्ट कि कौन से रिसर्च, किस टेस्ट, क्लिनिकल टेस्ट कितने साल हुआ, किस बॉडी ने अप्रूव किया,
कितने सारे मतलब कि लाइव लोगों को फायदा हुआ। जैसे गवर्नमेंट का एक रिपोर्ट बहुत अच्छा लगता है, मैं फॉलो करता हूँ, आप बहुत लोग करते होंगे। कोविड को लेकर ही एक टेलीग्राम ग्रुप गवर्नमेंट ने बनाया हुआ है, तो उसके थ्रू हर दिन लाइव रिपोर्ट आ जाता है कि कितने लोगों को कोविड हुआ, कितने लोगों का इलाज हो गया, नहीं हुआ। और बहुत अच्छा साइट है, गवर्नमेंट ऑफिशियल साइट टेलीग्राम ग्रुप, माई गॉव कोरोना न्यूज डेस्क। तो उस पे हजारों मिलियन से 2 लाख से ज्यादा 2 मिलियन से ज्यादा यूजर्स हैं, और रियल टाइम अपडेट आता है कि क्या लेटेस्ट आया। अभी लेटेस्ट अभी मैं देख रहा हूँ क्या आया, नरेंद्र मोदी जी का मन की बात पे लेटेस्ट में वो अच्छा वो तो किसी और टॉपिक पे बात करें, लेकिन उसपे आपको कोरोना का ही न्यूज डेस्क में सारा न्यूज कोरोना का आपको वहां मिल जाएगा, सिंगल पॉइंट। और मैं कहता हूँ किसी एक साइट पे लाइक करना ठीक नहीं है, गवर्नमेंट का भी देखो, साथ में जाकर आप प्राइवेट सेक्टर का भी, कुछ एनजीओ टाइप के जो रेपुटेड एनजीओ है उनका भी देखिए, एंड 2-3-4 सोर्स को देखने के बाद उसको फिर वेरीफाई किए। या रेपुटेशन बहुत इंपॉर्टेंट फैक्ट है। तो जैसे आनंद महिंद्रा जी ने अभी अचानक कुछ डिक्लेयर किया कि एक नया ऐप हमने टिकटॉक के जगह नया एक ऐप है, मैंने भी इंस्टॉल किया और करना चाहिए। तो मैं बोलूंगा कि हाँ, अब आनंद महिंद्रा जी बोल रहे हो तो मैं थोड़ा सीरियसली लूंगा ना कि इतने बड़े सक्सेसफुल आदमी महिंद्रा ग्रुप के ओनर हैं, इतने बिलियंस ऑफ डॉलर पूरे वर्ल्ड में उनका बिजनेस है। तो आनंद महिंद्रा बोल रहे हैं तो सीरियसली, बट केवल एक आनंद महिंद्रा को नहीं मानूंगा। आई हैव टू कि आनंद महिंद्रा भी बोल रहे हैं, साथ में उनका राइवल बिजनेस भी, वो तो महिंद्रा एंड महिंद्रा के होके, बट साथ में कोई रिलायंस वालों ने भी क्या बोला, अच्छा टाटा वालों ने क्या। तो मैं 3-4 लोग सोर्सेज से वेरीफाई करूंगा, तब किसी भी ट्रीटमेंट को या दवा को ट्रस्ट करूंगा। तो दैट इज माय पॉइंट कि डोंट बिलीव एनीवन टिल यू वेरीफाई फॉर योर ओन एंड थ्रू योर ओन सोर्स, अपने सर्च के थ्रू। सही बात है। और जो टॉपिक था, सॉरी, स्पोर्ट्स वाले टॉपिक की जो बात कर रहे थे, तो वेडिंग स्पोर्ट्स में जो वेडिंग इवेंट्स पे आ गए थे हम लोग। हाँ, वेडिंग इवेंट्स। तो वेडिंग इवेंट जो है ना, हमारे वेडिंग जो इवेंट है ना, बहुत बड़ा एक शो करने का, एक सोसाइटी को दिखाने का बहुत बड़ा अपॉर्चुनिटी था कि देखो मेरी शादी, मेरे बेटे की शादी या मेरी बेटी की शादी सबसे बड़ी। अभी अंबानी ने शादी क्या कहते हैं, मुकेश अंबानी ने, तो उन्होंने तो इनको भी बुला लिया, क्या सबसे बड़ी सिंगर है वर्ल्ड की, ब्लैक सिंगर है, मतलब वन ऑफ द टॉप मोस्ट सिंगर दुनिया के, जितने बड़े बड़े सुपरस्टार है सबको उन्होंने बुला लिया अपने शादी में। तो वो शादी, तो आज की जो शादी हो गई ना, वो शादी एक कभी कभी पब्लिसिटी इवेंट, पॉलिटिकल इवेंट बहुत सारे होते हैं कि शादी में कौन कौन नेताजी को बुलाया गया, किस मिनिस्टर को बुलाया गया, किसको कहाँ सीट मिली, कौन किसके साथ हैंग आउट कर रहा है, किसके साथ किसका सेल्फी आ रहा है। तो वेडिंग इवेंट्स वो भी वही हो गया है कि इट्स ऑल अबाउट शोइंग ऑफ टू द सोसाइटी कि मैं कितना बड़ा हूँ या कितनी बड़ी हूँ। तो अंबानी जी के शादी में के बुलाए हुए वेडिंग इवेंट में बहुत बड़े बड़े लोग आएंगे, उसमें इनविटेशन के लिए आपको लाइन लगाना पड़ेगा। मान लीजिए अंबानी जी नहीं है, आप कोई छोटे बिजनेसमैन है, तो ठीक है 10 करोड़ 20 करोड़ का ही केवल खर्च कर पा रहे हैं, तो अच्छा 10 करोड़ वाला शादी है। और कोई गरीब है, गांव का किसान है, तो उसको अपने किसान को अपने गांव के लिए कुछ लोगों को बुलाने में दिक्कत होती है। तो बट अल्टीमेटली वो वेडिंग इवेंट तो नहीं कर सकता, बट अपने छोटी इवेंट करेगा कि प्रॉपर उसने बुलाया, एक पंडित बुलाया, और जो प्रोसेस होता है हजार लाख रुपए में शादी हो जाती है। तो वेडिंग इवेंट्स वही लोग करते हैं जिनको कि बिजनेस काफी पैसा है और दिखाना भी है, क्लाइंट्स को बुलाना है, प्रोस्पेक्ट्स को बुलाना है। तो वेडिंग इवेंट्स मेरे हिसाब से हैज बिकम मोर एंड मोर ऑफ business events and not just a family event anymore. आई थिंक सोशल प्रेशर भी हो जाता है बहुत लोगों पे, करना ही पड़ेगा, शादी है बुलाना ही पड़ेगा इतने लोगों को, कैसे छोड़ दे किसी को, और अच्छे से करना पड़ेगा, शादी हो रहा है, घर का रेपुटेशन है, ये है वो है। और किसको किसको कार्ड नहीं मिला, अगर मान लीजिए गलती से मैंने शादी में कार्ड बहुत बांटा, आप लोगों ने बांटा होगा, तो मान लीजिए गलती से कोई आपका अपना है और गलती से कार्ड छूट गया, तो कि रिलेशनशिप का आपका खराब हो जाएगा। तो उसके लिए आपको जाके जो इम्पोर्टेंट लोग हैं, जैसे मैं अपनी सिस्टर की बेटी की शादी में गया था लास्ट ईयर कराची में, तो आई रिमेम्बर कि मेरे जीजा जी थे, उन्होंने मुझे भी बहुत सारा कार्ड नहीं दिया। उन्होंने कि ये कार्ड जो कि मेरे ऑफिस के कलीग से जो मैं पर्सनली जानता हूँ, उनको मैं तुम्हारे साथ नहीं भेज सकता, वो खुद जा जाके उनको दिया। मुझे वही सारे कार्ड दिए गए जो कि मैं बांट सकता हूँ, क्योंकि वो कोई रिलेटेड नहीं है, मतलब कि किसी को नहीं आता। तो कार्ड बांटने का काम भी फैमिली के लिए इम्पोर्टेंट ओकेजन होता है कि कौन जाके शादी का इनविटेशन कार्ड बांट रहा है। तो वो भी जो क्लोज लोग हैं, मैंने अपने
क्या कहते हैं भतीजे को साथ में लिया, क्योंकि वो सबको जानता था, वो भी आया हुआ था 1 महीने के लिए पटना से, वो रांची में बैठा हुआ था। तो उसको मैंने बोला कि चलो तुम साथ में, तुम तो जानते हो सबको, तुम 1 महीने से इन्वॉल्व हो, तो तुम जहां जहां बांटना है साथ में लेके हमको चलो, अपने बाइक से मैंने बांटा। तो वेडिंग इवेंट ऑल्सो इज अ सोशल इवेंट, सो वेरी हमेशा सोशल था, बट इट्स ऑल्सो अ बिजनेस एंड पॉलिटिकल इवेंट, शो ऑफ इवेंट, कितना किसकी कितनी बड़ी शादी, दैट्स द मेन थिंग। करेक्ट करेक्ट। और ये आई थिंक अभी बहुत सारे लोग जो सोशल प्रेशर से मुक्त हो जाएंगे, क्योंकि अब उनके सबके पास कोविड का बहाना है, भाई कोविड था कैसे बुलाते हैं, नहीं बुलाए, या जो भी 10 लोगों के बीच करा दिया, वो फॉरनर शादी जैसा। फॉरनर में कैसे होता है 50-100 लोग से ज्यादा बुलाता नहीं वो लोग, बहुत सिलेक्टेड लोगों को बुलाया जाता है और शादी होती है उसमें। इंडिया में तो एक को मतलब ना, एक घर से 10 लोग भी आ जाएंगे, ऐसा भी है आई गेस। ये है, बट आई गेस बहुत लोगों का बेचारों का शादी हो सकता है होते होते रह गया, या टूट गया, या बनते बनते रह गया, उनका थोड़ा सा प्रॉब्लम एक होगा। और इंटरेस्टिंग याद आया विशाल कि निकाह हो गई है ऑनलाइन, जूम के थ्रू निकाह हो गई है, मुस्लिम फैमिली में शादी कर ली जूम के थ्रू। बहुत सारे फैमिली में यही कर रहे हैं कि पंडित जी भी हैं जूम पे, और लड़की वाले भी उधर साइड है, लड़के वाले भी उधर साइड में। कोरोना के बीच में शादी हो गई, तो अब शादी जब डिजिटल हो सकती है तो बाकी तो एनीथिंग इज पॉसिबल। सही बात है। ठीक है, ये तो आई थिंक उनका नहीं हुआ वो कर ही लेंगे आज नहीं तो कल। एक और का बात करते हैं, ये टैक्सी इंडस्ट्री जो पूरा हैम्पर हो गया। टैक्सीज, बेचारे टैक्सी वाले बैठ गए ऑलमोस्ट 2 महीना 3 महीना, अभी भी आई गेस बहुत ज्यादा धंधा नहीं मिल रहा होगा उनको, कम ही चल रहा होगा। तो बेचारे वो क्या कर सकते हैं, मैंने उनको कुछ ऑल्टरनेट सोचना चाहिए, नहीं सोचना चाहिए, क्या करना चाहिए। ब्रिजेश has joined. Brijesh, what do you think? Brijesh, okay, are you connected, Mike? He's not connected. Neeraj is quiet today. Are you there, Neeraj? यस विशाल, हाँ बताइए। सर ठीक है, आपने नया टॉपिक स्टार्ट किया। मैं थोड़ा सा एक पहले जो बात हो रही थी कि फेक कोरोना और वो सारी कहानी, उस पे थोड़ा सा एक स्टैटिस्टिकल पॉइंट रखना चाहूंगा। स्टूडेंट्स हैं जुड़े हुए, उज्जवल है और अमन है, काफी लोग, हाँ सेजल है। तो ये थोड़ा सा साइंटिफिक पर्सपेक्टिव माइंड में रखना बहुत जरूरी है। और ये जो मैं अभी जो बात करने जा रहा हूँ, इसके बारे में अगर टाइम मिले और आपको थोड़ा सा भी मैथमेटिक्स स्टैटिस्टिक्स में इंटरेस्ट है, तो इट्स रियली रियली गुड थिंग टू नो कि कैसे ह्यूमन बायसिंग काम करती है। सॉरी, एक थ्योरम है जिसको बोलते हैं बेज थ्योरम, स्टैटिस्टिक्स में काफी पॉपुलर थ्योरम है। उसमें क्या होता है कि प्रोबेबिलिटी ऑफ हैपनिंग अ इवेंट बेस्ड ऑन द रिजल्ट ऑफ अनदर इवेंट, ठीक है। तो उसका पूरा डेरिवेशन अगर आप थोड़ा सा देखेंगे तो आपको वो समझ आ जाएगा। मैं थोड़ा सा ऊपर ऊपर से बताता हूँ। अगर आपका जो किट है जो कोरोना को टेस्ट करता है, ठीक है, उसमें थोड़ा एरर है कुछ, और हर एक मशीन में एरर होता है। कोई भी मशीन 100% काम नहीं करती है। आप कितनी अच्छी से अच्छी मशीन बना लीजिए, उसमें कहीं ना कहीं मतलब एरर रहता है। ये मैकेनिकल टर्म्स में बात की जाती है। तो आपकी कोरोना टेस्टिंग किट में भी कोई भी किट 100% रिलायबल नहीं हो सकती है, उसमें कहीं ना कहीं कोई एरर होगा। तो अगर आप मतलब मैं लॉट की बात कर रहा हूँ कि 100 टेस्टिंग किट आई तो वो 100 की 100 ठीक नहीं होंगी, उसमें से कुछ जरूर फॉल्टी होंगी। तो अगर आपका टेस्ट हो रहा है और आपके हाथ आ गई है फॉल्ट वाली किट, और आपको उसने एक टर्म होती है फाल्स पॉजिटिव फाल्स नेगेटिव, कि आपका आना नहीं चाहिए था पॉजिटिव लेकिन आपको पॉजिटिव बता दिया, ठीक है। तो उस केस में प्रोबेबिलिटी की अगर टर्म्स में बात करें तो 95% चांस है, अगर किसी का कि उसने मशीन ने पहले राउंड में गलत आपकी रिपोर्टिंग करी है, और सेम लॉट में अगर हम दोबारा टेस्टिंग करेंगे तो 95% से सीधा फॉल होके आ जाता है 18% पे। अगर सेम रिजल्ट आपका 2 बार आया है तो
फॉल्सनेस की जो परसेंटेज है वो 95% से सीधा घट के 18% आ जाती है। और अगर आपने तीसरी बार भी टेस्ट कर लिया तो 3 बार टेस्ट होने के बाद जो फॉल्सनेस की परसेंटेज है वो बिलो 3-4% रह जाती है। तो और जो चाइना से किट आई है उनमें काफी हद तक फॉल्टी हैं, तो इस वजह से भी काफी प्रॉब्लम हो रही है। और ये स्टैटिस्टिकल मेथड मेडिकल साइंस में काफी यूज किया जाता है, स्पेसिफिकली इन डायग्नोस्टिक्स, क्योंकि एरर के चांस हमेशा होते हैं। तो इसलिए कोरोना के केस में भी सरकार बोलती है कि एटलीस्ट आपका जब तक 3 बार सेम रिजल्ट ना आ जाए, कि आपका 3 बार नेगेटिव आया है तो ठीक है, अब आप हम बोल सकते हैं 97% कॉन्फिडेंस के साथ या 98% कॉन्फिडेंस के साथ कि अब आप घर जा सकते हैं। अगर सिर्फ एक बार टेस्ट करेंगे तो उसमें कॉन्फिडेंस लेवल सिर्फ 5% रहेगा। 2 बार टेस्ट करेंगे तो कॉन्फिडेंस लेवल बढ़ के आपका 82-83% आ जाएगा। तो इसमें ये पूरा मैथमेटिक्स है कि आपकी किट कितनी फॉल्टी है और आपको कितनी बार उसको रिपीट करना पड़ेगा, और कितनी बार के रिपीटिशन में अगर सेम वैल्यू आती है तो तब जाके आपका कॉन्फिडेंस लेवल सेट होगा। तो ये है उसके अराउंड। थोड़ा सा शादी के बारे में बोलना चाहूंगा। शादी बहुत हद तक मिडिल क्लास के लिए बोझ बन गया है। स्पेसिफिकली अगर मैं बात करूं नॉर्थ इंडिया की और दिल्ली की शादी, और मतलब इस रीजन में जो होता है, ये बहुत हद तक दिखावा रह गया है। लोग पीयर प्रेशर में कि फलाने ने अपने बेटी की शादी ऐसे करी थी, हम ऐसा नहीं करेंगे तो लोग हमारे बारे में क्या कहेंगे, सोसाइटी क्या कहेगी, उस चक्कर में लोगों को पैसा लगाना पड़ रहा था। मैं बिल्कुल क्लोज में एक रिश्तेदार है, मैं उनको जानता हूँ। उन्होंने शादी का कुछ रखा हुआ था कि साल सर्दियों में होती हैं मेनली शादियाँ, जो मुहूर्त वगैरह भी निकलते हैं वो उसी समय पे ज्यादा होते हैं। तो उन्होंने रखा हुआ था कि बेटी की शादी दिसंबर जनवरी टाइम फ्रेम में करनी है, और उनकी किसी से बात चल रही थी। तो उन्होंने क्या किया, उन्होंने मेरे साथ भी बात की। उन्होंने कहा कि मैं इस सिचुएशन का मुझे फायदा उठाना है, क्योंकि वो सोशल प्रेशर में जो पैसा लगने वाला है ना फालतू में, वो पैसा मैं अपनी बेटी को दे दूंगा। तो उन्होंने तुरंत उन लड़कों वाले से ज्यादा स्पीडली बात बढ़ाई आगे, और उन्होंने कहा कि भाई देखो कोई फायदा नहीं है, कल को अगर सब कुछ ठीक ठाक खुल गया दिसंबर जनवरी तक, तो वो सारा ढमढमा जो होता है वो दोबारा फालतू में करना पड़ेगा, पैसा बर्बाद होगा। अभी ना कि कोई कुछ बोल पाएगा, कुछ कह पाएगा कि ऐसे क्यों कर दिया, चुपके से क्यों कर दिया काम, इतना छोटा इवेंट क्यों किया। और उन्होंने अभी शादी प्लान कर ली है, और अभी जुलाई में वो कोशिश कर रहे हैं कि कोई शुभ दिन निकाल के और वो लपेट दें, क्योंकि 50 लोगों का इवेंट होगा, घर घर के लोग होंगे, ना फालतू सामाजिक दिखावा करना है, कुछ नहीं करना है, और जो पैसे बचेंगे वो बच्चों को दे दिए जाएंगे। तो लोग कहीं ना कहीं मौके भी ढूंढ रहे हैं इस कोरोना में, कि चलो ठीक है, मेरे को जो सोशल प्रेशर में जो चीजें करनी पड़ रही थी, जो पीयर प्रेशर में जो चीजें करनी पड़ रही थी, मैं उनसे कैसे बचूं। और मेरे पास तो रियल एग्जांपल है शादी वाला। नेक्स्ट, जो आपने टैक्सीज के बारे में बात स्टार्ट की विशाल जी, तो टैक्सीज में क्या है, इम्पैक्टेड है, बहुत हाईली इम्पैक्टेड है बिजनेस, लेकिन कहीं ना कहीं फिर भी लोगों को ये मानना है कि रादर देन ट्रैवलिंग इन पब्लिक ट्रांसपोर्ट लाइक बस और ट्रेन, टैक्सी फिर भी कुछ हद तक सेफ है, कि आप अकेले हैं या आप और आपकी फैमिली ही हैं सिर्फ उसमें। तो लोग पसंद कर रहे हैं, बेटर मान रहे हैं पब्लिक ट्रांसपोर्ट में, जहाँ पे भीड़ भाड़ हो सकती है, पता नहीं कौन है क्या है। तो इसमें अभी थोड़ा सा देखने वाला रहेगा। मुझे ऐसा लगता है कि टैक्सी बिजनेस विल ग्रो। उसका रीजन एक तो ये डर वाली बात है कि पब्लिक ट्रांसपोर्ट में इन्फेक्शन का ज्यादा खतरा है, और दूसरा जो कंपनीज ने बहुत एग्रेसिव स्ट्रेटजी अपनाई है इस चीज को लेके। आप ओला को भी देखेंगे, इतनी एडवर्टीजमेंट हो रही है, टीवी एडवर्टीजमेंट भी हो रही है, किसी भी सोशल प्लेटफॉर्म पे चले जाइए, वहां पे तीसरी चौथी ऐड तो मुझे इन्हीं की दिख जाती है, उबर या ओला की, कि ऐसे ऐसे करके हम अभी टैक्सीज को साफ कर रहे हैं, या जो भी एक बंदे ने ट्रैवल किया उसके बाद सैनिटाइजेशन होता है पूरा, ये करते हैं, ड्राइवर्स को हमने ये बोला है करने के लिए, इस तरह की ट्रेनिंग्स दी हैं। तो कंपनीज सोशल अवेयरनेस पे बहुत ज्यादा फोकस कर रही हैं, और ऊपर से फिर जो डर वाली बात है उसमें भी उनको, मेरे को लगता है, गेन के ज्यादा चांसेस हैं। अभी लॉकडाउन था तो लोग मूव ही नहीं कर रहे थे, तो अलग बात थी, तो वो तो उसमें तो कुछ किया ही नहीं जा सकता था। लेकिन जैसे अभी अनलॉकडाउन शुरू हुआ है और आज से बोला जा रहा है
फेज 2 ऑफ अनलॉकडाउन शुरू हुआ है, तो उसमें टैक्सीज की डिमांड बढ़ेगी। लोग सिक्योरली और एक अपने पर्सनल व्हीकल में ट्रैवल करना चाह रहे हैं। और जैसे सेकंड हैंड गाड़ी की बहुत डिमांड बढ़ी है पिछले कुछ टाइम में, क्योंकि लोग सोच रहे हैं कि मैं अपनी गाड़ी ले लेता हूँ, उसी से मूव किया करूंगा, पब्लिक ट्रांसपोर्ट यूज नहीं करूंगा। उसी एक फेज में हम बात कर सकते हैं, उसी सेम स्पेस में हम बात कर सकते हैं कि टैक्सीज की भी थोड़ी बहुत डिमांड जरूर इंक्रीज होगी। ओके, अतुल सर आपका कुछ कहना टैक्सी इंडस्ट्री के बारे में? मैं तो टैक्सी इंडस्ट्री में खुद भी काम करता हूँ। मैंने कुछ महीने काफी दिन एक्चुअली ओला भी चलाया है, जो भी ओला नहीं सॉरी यहाँ पे यूएस में उबर भी चलाया, लिफ्ट भी चलाया है। तो मैं एक अफेक्टेड पार्टी हूँ। तो उबर और ओला के साथ सबसे बड़ा जो भी टैक्सी इंडस्ट्री के साथ जो पुरानी टैक्सी इंडस्ट्री थी वो डिस्टर्ब पहले कर दिया था इन नई टैक्सी इंडस्ट्री ने, ओला उबर और लिफ्ट वगैरह ने, और दूसरे कंट्रीज में भी अलग अलग आ गई हैं। तो पुरानी टैक्सी के कंट्री का मॉडल जो था ना, थोड़ा मोनोपोलिस्टिक वाला मॉडल था। जैसे न्यूयॉर्क, जहाँ की मैं और ज्यादा फेमिलियर हूँ, तो न्यूयॉर्क में क्या है कि वहाँ पे आपको न्यूयॉर्क सिटी में टैक्सी चलाने के लिए मेडालियन मिलता है, एंड मेडालियन आप समझ कि $1 मिलियन टाइप से आपको मिलता है। तो एक तरह से माफिया है कि आपको मेडालियन नहीं में तो आप चला नहीं सकते। तो उस मेडालियन के लिए, और बहुत सारे इंडियन, पाकिस्तानी, बांग्लादेशी चलाते हैं, तो मेडालियन खरीदने के लिए बहुत पैसा खर्च करते हैं, ब्लैक में बिकता है मिलियंस ऑफ डॉलर्स में। बट उस पूरे मॉडल को अचानक आकर उबर ने डिस्टर्ब कर दिया कि हमको कोई टैक्सी की जरूरत है, हमको तो हर आदमी जिसके पास अपना कार है अपनी कार लेके चला सकता है। तो वो एक बहुत बड़ा डिस्ट्रप्शन आ गया था उबर। अब कोरोना के टाइम पे अगर बहुत ज्यादा किसी को फायदा अगर होता या हुआ तो उस इंडस्ट्री को एक्चुअली फायदा हुआ, क्योंकि आदमी बहुत ही शॉपिंग के लिए निकलना है या किसी इवेंट के लिए निकलना है, मीटिंग के लिए निकलना है, तो आदमी थोड़ा सेफ्टी को लेकर थोड़ा कॉन्शियस हो गया है, तो आदमी रिलायबल। बट उसमें भी क्या हो गया कि ये जो टैक्सी में प्रॉब्लम है कि टैक्सी में बहुत लोग शेयर करेंगे तो फिर आपका इन्फेक्शन वाला प्रॉब्लम है। तो उन लोगों ने कोशिश ये किया है कि उन्होंने कोशिश किया है कि आपको इंटर करने के पहले और मतलब ऑनबोर्डिंग, जैसे फ्लाइट में होता है ऑनबोर्डिंग के पहले और ऑनबोर्डिंग निकलते समय बाद में पूरा क्लीन अप करना पड़ेगा आपको, हेल्थ का चेकअप होगा, बहुत सारी की प्रोसीजर्स लगाई गई हैं बहुत जगह पे, लेकिन दैट्स नॉट इजी। एंड इसलिए बहुत सारे लोग बोलते हैं कि यार क्यों जाना ही नहीं है, घर से निकलना ही नहीं है। तो वर्क फ्रॉम होम सबसे बड़ा खतरा आ गया टैक्सी इंडस्ट्री के लिए। बहुत सारे लोग जो टैक्सी इंडस्ट्री को जो बिजनेस मिलता है वो कॉर्पोरेट क्लाइंट्स है, कि हर आदमी ऑफिस जाने के लिए, बहुत लोग तो अपनी कार से जाते थे, लेकिन ज्यादातर केसेस में कॉर्पोरेट अगर पैसा दे रहा है कंपनी, या स्पेशली कोई ट्रैवल कर रहा है बिजनेस के लिए, मैं जैसे मीटिंग के लिए मैं यहाँ से आज कैलिफोर्निया से न्यूयॉर्क जा रहा हूँ, तो वहाँ मैं जाऊँगा तो वहाँ मैं एयरपोर्ट से टैक्सी लूंगा, एयरपोर्ट से लेके जहाँ भी जाऊँगा, हर मीटिंग के लिए मैं एक टैक्सी लेता। अब उसके लिए ओला उबर बहुत कन्वीनियंट हो गया, हमने जहाँ हूँ खड़ा हो गया, 5 मिनट के अंदर मुझे टैक्सी मिल जाए, मतलब कि ओला उबर आ जाएगा। बट वो इंडस्ट्री अब थोड़ा सा उबर के सॉरी कोरोना के चलते नेगेटिवली एडवर्सली इफेक्ट हो गई है, क्योंकि फिजिकल हेल्थ वाला कंसर्न आ गया है कि शेयरिंग इकोनॉमी जो बहुत बड़ा, जिसको एक वर्ब बोल गया था ना कि उबर इकोनॉमी, हर चीज ऑन डिमांड ऑन शेयरिंग, बट कोरोना ने शेयरिंग के ऊपर बहुत बड़ा रोक लगा दिया है कि आप किसी के साथ जब साथ में आप डिस्टेंसिंग मेंटेन करना है, सोशल डिस्टेंसिंग, तो शेयरिंग किसी का आप छुआ हुआ चीज आप घर में भी किसी को बुला नहीं सकते हो। जैसे मैं अपने अपार्टमेंट में, हमारे लीजिंग ऑफिस वाले ने क्या किया एक बार कि किसी को घर दिखाने के लिए उन्होंने गलती से हमारा वाला चाबी दे दिया, तो उन्होंने लॉक करके दरवाजा खोल दिया, हम लोग पता भी नहीं चला। तो हमने काफी लीजिंग ऑफिस को काफी गाली दिया, उनको मेल वेल दिया, सब कुछ किया। बट वो जो चीज है ना कि हमारा जो कंसर्न ये था कि कोई भी बाहरी इंसान मेरे घर के दरवाजे को छुएगा भी तो इससे मेरे लिए सिक्योरिटी रिस्क है। मेरी ऐसे भी हेल्थ की स्थिति, मुझे एक बीमारी है MS, तो कोई एक्सटर्नल एलिमेंट में जो आदमी बहुत सोशल भी थे वो लोग है कि मैं आई कांट अवॉइड एनी एक्सटर्नल टच, कि कोई मेरे घर के दरवाजे को भी नहीं छुए, कोई मेरे कार को भी नहीं छुए, कोई मेरे फोन को भी नहीं छुए। तो आजकल आप देखते हैं कि जहाँ भी जाएंगे तो लोग अपने फोन को भी वाइप करने का प्रोसेस, क्योंकि सबसे ज्यादा इन्फेक्शन फैलता है फोन से या आपके लैपटॉप आईपैड से। तो वो एक बहुत बड़ा डिस्ट्रप्शन हो गया। तो
जिस इकोनॉमी की बात कर रहे हैं हम लोग कार वाली इंडस्ट्री की, तो इंडस्ट्री में तो आप अपनी बॉडी को दूसरे फिजिकल इक्विपमेंट में डाल रहे हो, जिस इक्विपमेंट को बहुत सारे लोग यूज करते हैं। हो सकता है सुबह से शाम तक 10 लोग 20 लोग उसी कार में बैठे हो। पुराना वाले को कोरोना था नहीं था, नोबडी नोज। तो वो बहुत बड़ा कंसर्न हो गया, तो इसलिए शेयरिंग इकोनॉमी को कोरोना के चलते काफी डैमेज पहुंचा है मेरे ख्याल से। उबर के अलावा इसमें एक चीज ऐड करना चाहूंगा विशाल जी, अभी रिसेंटली 2-3 एग्जांपल्स मुझे देखने को मिले हैं। लोग लॉन्ग डिस्टेंस ट्रेवल भी इंडिया में कार में कर रहे हैं, मतलब टैक्सीज में कर रहे हैं। इवन फ्लाइट को भी इतना सेफ नहीं समझ रहे हैं। सब चीजों में लगता है कि जहाँ पे भी पब्लिक ज्यादा रहेगी वहां पे प्रॉब्लम है। मेरे एक फ्रेंड हैं, वो लॉकडाउन से पहले नासिक गए हुए थे फैमिली के साथ और वहीं पे फंसे रहे, और अभी वो गुड़गांव आए हैं, नासिक से गुड़गांव आए हैं, टैक्सी लेके आए हैं। वो उनका एक छोटा बच्चा है और वाइफ के साथ उन्होंने ट्रैवल किया। 2 दिन लगे उनको नासिक से यहाँ पहुंचने में, लेकिन उन्होंने कहा कि नहीं, मैं प्लेन से नहीं आऊंगा। तो लॉन्ग डिस्टेंस ट्रैवल में भी लोग अब इस तरह के टैक्सी, और फिर वो टैक्सी वाले ने क्या सेटिंग की कि उसने पहले ऑलरेडी एक कोई ढूंढा जिसको गुड़गांव से उधर महाराष्ट्र की साइड जाना था, मुंबई जाना था किसी को। तो उसको फिर दोनों तरफ के जब फाइनल हो गया कि दो पार्टी है मेरे पास, एक आने वाली एक जाने वाली, तो उन्होंने फिर वो डेट फिक्स करके फिर ट्रैवल किया है। तो इतने लंबे लंबे डिस्टेंसेस में भी लोग अब कार को प्रेफर कर रहे हैं। अब पता नहीं है कितने दिन तक रहने वाली है चीजें, लेकिन जिसके माइंड में बैठ गया है तो उसके लिए एयर ट्रैवल भी मतलब बेकार हो गया है। नहीं तो एयर ट्रैवल प्रीमियम चीज मानी जाती है। वो टाइम वाला जो फैक्टर है वो कहीं ना कहीं कम हो गया है, और ये सब चीजें सेफ्टी उसको ओवर पावर कर रही है। मैं तो कहूंगा कि सेफ्टी फर्स्ट। आपको टाइम बेशक जहाँ पे 2 घंटे लगने हैं, मेरे को 2 दिन लगे, लेकिन मैं जाऊंगा सेफ्टी के साथ। तो दोनों तरफ की बात है। फायदा, मुझे तो लगता है फायदा होने वाला है। नहीं ठीक है, वो तो कुछ तो फायदा होगा। लॉन्ग डिस्टेंस सब लोग नहीं चलाएगा ना, वो भी तो है। बहुत लोग तो 2-4 घंटे वाले हैं, एक दिन वाले लोग हैं, वो चीज है। एक चीज और है कि ये जो फियर फैक्टर है, इस पे एक चीज मैं बोलता हूँ, मेरा अंडरस्टैंडिंग के हिसाब से, कि अभी 1 से 10 तक का रेटिंग कर सकते हैं हम लोग फियर का। तो 1 भी ठीक नहीं है और 10 भी ठीक नहीं है। मतलब बहुत ज्यादा निडर हो जाना कि मुझे कुछ होगा ही नहीं वो भी थोड़ा बेवकूफी हो जाएगा। और फिर लेकिन ये भी सहम जाना कि कुछ भी हो जाएगा मेरे को, वो भी थोड़ा सा कुछ ज्यादा ही कंजर्वेटिव हो गया। बीच में कहीं 5-6 पे सेटल करना होगा लोगों को। तो अभी आई गेस इंडिया का पॉपुलेशन है ना, पूरा 1 से 10 में बटा हुआ है। लाइक 10% बोल सकते हैं ऑलमोस्ट मैं बोलूंगा, या थोड़ा सा आगे पीछे भी होगा। अभिषेक क्या कहना चाहोगे इस बारे में, ये फियर फैक्टर के बारे में बताओ। अभिषेक आर इज Abhishek is not there. Sejal, are you still there or you're gone now? फियर सर फियर मेरे यहाँ फैक्टर पे, नेटवर्क बहुत वीक है। अच्छा ठीक है, नीरज बताओ। हाँ, फियर फैक्टर पे सर मैं एक चीज बोलता हूँ, काफी हद तक है ना ये अपनी अंडरस्टैंडिंग पे है, और मुझे लगता है कि अंडरस्टैंडिंग आपकी बिल्ड होती है एजुकेशन से। ठीक है, तो जो जिसे कहते हैं ना आधी अधूरी समझ, वो सबसे खतरनाक है। उसमें आप 10 की साइड ज्यादा रहोगे, और अभी कहीं ना कहीं वो लोग ज्यादा हैं जिनके पास आधा अधूरा नॉलेज है, और जिनके पास कम नॉलेज है वो तो सबसे खतरनाक होते ही हैं। वो तो उनको तो जैसे मैं एक एग्जांपल देता हूँ। मेरी वाइफ के स्कूल में जो स्वीपिंग का काम करती है, ठीक है, तो वो लेडी कहीं दूर गांव से आती है और पब्लिक ट्रांसपोर्ट से आती है, और स्कूल में कोई मास्क नहीं लगाती है, कुछ नहीं लगाती है। तो ये बाकी सब टीचर्स बोलते हैं कि तुम ऐसा मत करो, तुम वैसे भी पब्लिक ट्रांसपोर्ट में ट्रेवल करते हो, और तुम कम से कम मास्क पूरा दिन लगा के रखा करो, हम भी लगाते हैं, इसमें क्या वो बात है। तो उसका विचार ये है, वो पता नहीं उसके हिसाब से ठीक भी होगा। वो बोलती है कि होना होगा तो हो जाएगा, और जिसको मरना होगा तो मर ही जाएगा, कौन रोक सकता है, मौत किसने रोकी है।
तो ये सोच वाले लोग भी हैं। कुछ ऐसे लोग हैं जिनके पास अधूरी नॉलेज है, जिनको लगता है कि मैं बस मेरे को दूर से अगर कोरोना वाले ने देख भी लिया ना तो उसकी नजर से भी मुझे कोरोना हो जाएगा। तो वो वाली खतरनाक सोच वाले लोग भी हैं जिनके पास मैं कहूंगा आधा अधूरा नॉलेज है। तो नॉलेज बिल्ड करना या सरकार को कुछ इसमें काम करना बहुत जरूरी है कि ट्रस्ट बनाया जा सके कि इतना होने से होगा, ये करने से नहीं होगा। जैसे आप बात करेंगे एड्स के अराउंड सरकार ने बहुत कैंपेन किया है एक टाइम पे, बहुत कि छूने से नहीं फैलता है, वैसे नहीं फैलता है, ऐसे नहीं फैलता है। तो सरकार को उस सब पे अपनी कैंपेन्स डिजाइन करनी पड़ेंगी, क्योंकि ये चीजें लंबे टाइम तक स्टे करने वाली है। तो लोगों को एजुकेट करना बहुत जरूरी है, मुझे लगता है। सही बात, सही बात। अतुल सर, आप कुछ बोलना चाहेंगे इस बारे में, ये फियर फैक्टर के बारे में? लास्ट में थोड़ा सा मिस नहीं कर, लास्ट पॉइंट नहीं सुन पाया मैं। लास्ट पॉइंट बोला कि जैसे HIV एड्स का बहुत 30 मार्क का कैंपेन किया गया था 30 साल पहले, आई गेस, जो भी 30 साल पहले स्टार्ट किया गया था, वैसे ही। हाँ, हमें समझ याद आ गया, मिस इन्फॉर्मेशन, नीरज ने मिस इन्फॉर्मेशन की बात बोली थी, राइट? तो मिस इन्फॉर्मेशन काफी क्या होता है ना कि बीमारी के, कोरोना के बारे में बहुत सारा फेक इन्फॉर्मेशन मार्केट में सर्कुलेट है। हर आदमी अपने आप को MBBS डॉक्टर टाइप से बैठ के कोरोना के बारे में हर आदमी कमेंट्री दे रहा है कि क्या करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए, और हम सबको व्हाट्सएप पे, फेसबुक पे, हर जगह पे हजारों ज्ञान आ रहा है। लेकिन वो एक बहुत बड़ा कंसर्न है। और दूसरा एक है कि कोरोना के बारे में, दूसरा है कोरोना का इलाज के बारे में, कि कोरोना को प्रिवेंट कैसे किया जाए और कोरोना को ट्रीट कैसे किया जाए, उसके बारे में बहुत मिस इन्फॉर्मेशन है कि हर आदमी अपना अपना दवा निकाल रहा है, अपना अपना ट्रिक बता रहा है। कोई होममेड दवा बता रहा है, कोई आयुर्वेदिक दवा बता रहा है, कोई एलोपैथिक दवा बता रहा है, अलग अलग दवा बता रहे हैं। तो वो भी एक मिस इन्फॉर्मेशन है। तो मेरे ख्याल से इसके लिए सबसे इम्पोर्टेंट जो काम गवर्नमेंट को करना पड़ेगा, सारे गवर्नमेंट्स को, लोकल लेवल पे भी और सेंट्रल और स्टेट लेवल पे, कि बहुत बड़ा अवेयरनेस ड्राइव। आई थिंक जैसे आज ही मैं तुम्हें मन की बात पे कुछ बड़ा मोदी जी ने कुछ भाषण दिया, अगर किसी ने सुना हो तो, बट मेरे ख्याल से वो एक बहुत बड़ा कैंपेन करना पड़ेगा। जैसे कि आज से कुछ साल पहले पोलियो को हटाने के लिए इंडिया से, इंडिया ने लिटरली पोलियो को या मलेरिया को हटाने के लिए बड़े बड़े लोग, अमिताभ बच्चन और जितने बॉलीवुड के स्टार्स हैं, क्रिकेट के स्टार्स हैं, उन सबको लेकर कैंपेन में इन्वॉल्व करके और देना पड़ेगा। मान लीजिए आप अनुपम खेर को लेके आ गए, आप जो भी पॉपुलर एक्टर हैं, महेंद्र सिंह, MS धोनी को लेकर आ गए। तो इन बड़े बड़े स्टार्स के साथ मिलके गवर्नमेंट को, और गवर्नमेंट आई थिंक वो काम अच्छा कर भी लेती है, कि उनका एक डिपार्टमेंट होता है, पब्लिसिटी का जो डिपार्टमेंट, जो PR का, जो रविशंकर प्रसाद जिसके की मिनिस्टर भी हैं और मेरे ख्याल से ठीक ही ठाक अच्छा बोल भी लेते हैं। तो गवर्नमेंट के जो सबसे आर्टिकुलेट लोग हैं, उन लोगों को फ्रंट पे लगाना पड़ेगा गवर्नमेंट को खुद से। बट गवर्नमेंट के एम्प्लॉइज पे, ब्यूरोक्रेट्स पे या मिनिस्टर्स पे उतना भरोसा नहीं है। गवर्नमेंट को सोसाइटी में जो रेस्पेक्टेड लोग हैं, जिनकी लोग बात सुनते हैं, कि आज अमिताभ बच्चन बोलता है कि पेप्सी पी लो, तो हम पेप्सी पी लेते हैं। अगर शाहरुख खान बोलता है कि नहीं कोको कोला पियो, तो कोको कोला पी लेते हैं। तो वैसे लोगों को इन्वॉल्व करना पड़ेगा। जो भी हर आदमी का, हर इंसान का अलग अलग फेवरेट है। किसी के लिए स्पोर्ट्स पर्सन है, किसी के लिए फिल्म कैरेक्टर्स हैं, किसी के लिए हो सकता है कि नहीं वो इंडिया के क्या कहते हैं, आर्मी के जैसे जनरल VK सिंह हैं, या कोई बहुत बड़े पुलिस किरण बेदी हैं। तो अलग अलग जो आइकॉनिक लोग हैं, जो सोसाइटी को इन्फ्लुएंस कर सकते हैं, जिनकी बात सोसाइटी सुनती है। यंग जनरेशन के लिए अलग आइकॉन्स हैं, ओल्ड जनरेशन के लिए अलग आइकॉन्स हैं, मिड जनरेशन के लिए अलग आइकॉन्स हैं। तो उन आइकॉनिक लोगों को और उन ऑर्गेनाइजेशंस को भी, बहुत सारे ऑर्गेनाइजेशंस में जिनकी काफी रेपुटेशन है, जैसे अक्षय पात्रा का काफी अच्छा रेपुटेशन है, इस तरह के और भी बहुत सारे जो नॉन प्रॉफिट, जिनका की जिन पे कोई दाग नहीं लगा हुआ, तो वैसे लोगों को जुटाकर गवर्नमेंट को एक डिटेल स्ट्रैटेजी बनानी पड़ेगी कि कैसे पब्लिक में ये अवेयरनेस क्रिएट किया है। आपने देखा होगा, जो कि हम लोगों ने सबने देखा है, कि कैसे सोशल डिस्टेंसिंग को लेकर जो इतनी कंसर्टेड कैंपेन की गई थी, नॉट ओनली बाय गवर्नमेंट बट इवन बाय इंडिविजुअल्स। बहुत सारे बॉलीवुड के, हाँ, इवन अक्षय कुमार, बहुत सारे बॉलीवुड के स्टार्स ने, फिल्म स्टार्स ने भी और स्पोर्ट्स स्टार लोगों ने भी कैंपेन किया कि लॉकडाउन के फेवर में
अब जब अनलॉकडाउन हो गया, खुल गया, तो फिर से वो कैंपेन करने की जरूरत है कि नहीं, ये छूत की बीमारी नहीं है, ये या मतलब ये बीमारी नहीं है कि आपको किसी को देखने से कोरोना हो जाएगा। बहुत सारे लोगों को ये भी कंफ्यूजन हो गया, कोरोना कैसे होता है, क्या है। इस इंफॉर्मेशन को सिंपल लैंग्वेज में, आम भाषा में, मल्टीपल लैंग्वेजेस में, तमिल, तेलुगु, गुजराती, हर लैंग्वेज में उस लैंग्वेज का आइकन। अब मुझे तमिलनाडु में अगर इन्फ्लुएंस करना है तो मुझे अमिताभ बच्चन से नहीं कराना है, मुझे रजनीकांत से बुलवाना पड़ेगा। अगर मुझे लड़की लोगों को इन्फ्लुएंस करना है तो मुझे शायद उनका जो एक्टर है उससे कराना पड़ेगा। लड़का लोग कराना है तो उनके लिए जो सबसे उनकी पॉपुलर जो है उन सारे लोगों से, और वो सारे लोग जुटेंगे भी, उनको भी एक अच्छा मौका मिलता है पब्लिसिटी का। तो इन सारे लोगों को जुटाकर, मतलब इंडिविजुअल्स, ऑर्गेनाइजेशंस, इन सबको जुटा के गवर्नमेंट को काफी डिटेक्टली, जैसे वॉर फ्रंट पे कैसे कारगिल वॉर के टाइम पे या अभी चाइना के अगेंस्ट सारे लोग को गवर्नमेंट इकट्ठा कर रही है कि चलो वॉर अगेंस्ट चाइना, तो सेम जो वॉर अगेंस्ट चाइना टाइप का सिमिलर एफर्ट कोरोना के अगेंस्ट। और मैं तो नॉर्मली हमेशा यही करता हूँ कि चाइना और कोरोना इन दोनों से हम लोग को लड़ना है, मिलजुल के लड़ा जाए। तो एक गवर्नमेंट को डिपार्टमेंट ऑफ ऑडियो विजुअल पब्लिसिटी होता है, DAVP आई गेस, तो उसको लीड करना पड़ेगा। बट इंडिविजुअल्स को एंड नॉन प्रॉफिट्स को, इन्फ्लुएंसर्स को मिलजुल के करना पड़ेगा। आई होप मैंने नीरज की बात कवर की, होपफुली। हाँ जी, बिल्कुल। राइट टाइप ऑफ एजुकेशन की बहुत जरूरत है अभी। बहुत सारे मतलब मैं कल परसों ही यहाँ खड़ा था पड़ोस में, तो किसी के घर एक वो आते हैं योगा कराने वाले, तो वो कुछ ऐसे ही खड़े होके बोल रहे हैं कि अरे कोरोना से मत डरिए आप, कोरोना का 100% इलाज दूंगा मैं आपको, 1 हफ्ते में कोरोना से ठीक, एकदम ठीक। तो तुरंत वहां पे एक स्विगी वाला डिलीवरी बॉय आ गया, तो वो खड़ा होके वो भी सुनने लगा। वो बड़ी जोर जोर से बोल रहे थे 3-4 लोगों के बीच। सॉरी, बेचारा गरीब आदमी, उसने पूछ लिया कि क्या इलाज है, हमें भी बता दीजिए। उसने आराम से बोल दिया, तो तुरंत वो आदमी छिटक के बोलता है, ऐसे फ्री में थोड़ी ना बता देंगे भाई। तो जो ये इस तरह का जो ये एटीट्यूड मार्केट में घूम रहा है, गलत तरह का ज्ञान, लूट खसोट वाला नेचर, कोरोना एक मौका आ गया है, इसी में लूट के खा जाओ सबको और बस इसी में कमा डालेंगे। तो राइट टाइप ऑफ एजुकेशन टू राइट पीपल, थ्रू राइट पीपल, या जो भी मतलब तरीके हैं, उन सब पे काम करने की बहुत जरूरत है। इसी पे नीरज मुझे याद है कि एक वीडियो व्हाट्सएप पे भेजा था किसी ने कि बिहार की 2 लेडीज आपस में बात करा रही हैं और वो लोग झाड़ फूक टाइप का चीज कर रही है, कैसे करके हम भगा देंगे। तो वो इस तरह का जो मिस इन्फॉर्मेशन है ना, जो कि पुराने जमाने में भूत पिशाच या जो होता था, उस तरह का इन्फॉर्मेशन के अगेंस्ट जो कैंपेन था, उस तरह का कैंपेन कोरोना में भी कराना पड़ेगा कि ये जो चार्लटन बोलेंगे या नकली बाबा लोग, वो बहुत खतरनाक है जो आपने हाईलाइट किया। इन बाबा लोग के अगेंस्ट भी एक्शन में गवर्नमेंट को एग्जाम्पल देना पड़ेगा कि आप जैसे राम रहीम या आशाराम, जो भी इस तरह के लोग हैं, भैया आप पे एक भी कहीं आप एक्सपोज हो गए कहीं भी तो सीधा आपको जेल, बहुत स्ट्रिक्ट जेल। कुछ लोगों को जब जेल जाएंगे ना तो ऑटोमेटिकली इस तरह के लोग थोड़े से डरेंगे। ये फार्मा से भी रिलेशन है इसका, कि अब जैसे कि बात कर रहे हैं थोड़ा सा ब्रीफली हम लोग, कि कुछ मेडिसिन बन गए हैं, सब लोग ही क्लेम कर रहा है कि मैं भी हीरो इस टाइप से। अब सबका सर्टिफिकेशन होगा, उसमें पता नहीं कितना करप्शन हो जाएगा, क्या हो जाएगा। ये मास्क भी तो घर घर में बिकने लगा है वो, और जो PPE किट है या जो भी जितने सारे चीजें हैं, सैनिटाइजर का पता नहीं क्या हो रहा है, और हर जगह ओवर सैनिटाइज भी हो रही हैं चीजें। तो it's a bit interrelated, this fear factor with this pharma industry and maybe other industries also. फार्मा के अलावा विशाल वो भी इंडस्ट्री, जैसे कि जो भी हमारी जो FMCG इंडस्ट्री है, तो कोई नैपकिन बेच रहा है, कोई वो डिसइंफेक्टेंट बेच रहा है, तो उस इंडस्ट्री में सेल तो बढ़ गई, उनको कोरोना से काफी फायदा हो गया। दवा इंडस्ट्री को तो फायदा हुआ, दवा के साथ में अलाइड मास्क बनाने वाले, तो उस इंडस्ट्री पे भी थोड़ा सा पकड़ लगानी पड़ेगी कि आप मौके का फायदा मत उठाओ, मतलब कि जो आप कर रहे हो और इस मौके मेडिसिन के अराउंड थोड़ा सा बात करना चाहूंगा विशाल जी। मेडिसिन में अभी क्या है ना, मेडिसिन मान लो सपोज आ जाता है, ठीक है,
अभी कोई लॉन्च कर देता है। तो मेडिसिन एक देखने वाली चीज होगी। सबसे पहली बात तो ऐसा मेरे को बहुत कम पॉसिबिलिटी लगती है, जिसको भी थोड़ा सा नॉलेज होगा इस फील्ड का, कि आप आते ही कोई ऐसा इंजेक्शन आ जाएगा कि आपने लगवा लिया और अब आप फ्री हैं, घूमो फिरो मौज करो। ऐसा नहीं होने वाला है। उसमें क्या सबसे ज्यादा पॉसिबिलिटी जो होगी वो ये होगी कि आपको रिपीटेटिवली वो काम कराना पड़ेगा। महीने का भी हो सकता है, क्वार्टरली भी हो सकता है, 6 मंथ में एक बार भी कराना पड़ सकता है। तो उस तरह की चीज आएगी शुरुआत में। और दूसरा सबसे ज्यादा दिक्कत वाली बात क्या होती है ना, मैक्सिमम जो इम्यूनाइजेशन का प्रोसेस होता है उसमें क्या होता है कि आपको थोड़ी सी मात्रा में वो बीमारी दी जाती है। पोलियो का बिल्कुल एग्जैक्ट यही तरीका है। पोलियो की सारे तो कहीं दो, है। हाँ, 2 बूंद जो पिलाई जाती हैं वो 2 बूंद एक्चुअल में पोलियो ही होता है। और आपकी बॉडी के जो इम्यून सिस्टम को लर्निंग कराई जाती है कि वो लड़ना सीखे बीमारी से, और वो थोड़े लेवल पे फिर उसको लड़ता है, तो फिर वो जब अटैक अगर उसका होता है तो फिर वो उसको झेल जाता है। तो इसी तरह का अगर मान लो इसी वे से इसका इंजेक्शन भी आता है, तो सबको ये भी डर रहेगा कि कभी मेरे को एक्चुअल में हो ना जाए। तो मेरी कल ही बात हो रही थी, यूएस में मेरी मैनेजर है, शी इज अ नेटिव अमेरिकन, ठीक है, तो जो रिजर्वेशन वाले जो होते हैं ना फिनिक्स साइड में, तो वहां से आती है वो। तो उसने मुझे कहा कि अगर इंजेक्शन आ भी गया तो मैं तो लगवाने वाली नहीं हूँ, क्योंकि मैं तो फ्लू का भी इंजेक्शन लगवा लेती हूँ ना, तो मुझे फ्लू हो जाता है। तो पढ़े लिखे लोग, डेवलप्ड कंट्री के और अच्छी पोजीशन पे बैठे हुए लोग ये सब बातें कर रहे हैं, तो आप सोचिए कि जो गांव में जो आदमी है, अगर उसके कान में किसी ने बात डाल दी कि ये बीमारी ही पिला रहे हैं आपको, वो सोचो मतलब कितना हार्ड होगा उसका इम्यूनाइजेशन कराना। तो तो ये एक्चुअली इम्यूनाइजेशन अपने में एक टॉपिक है। कहीं ना कहीं ये भी एक आई डोंट नो ओवररेटेड चीज है आई गेस कि आप बीमार होके इम्यूनाइज ना हो, आपको अलग से एक स्मॉल डोज में उसी का एक छोटा भाई या जैसा कुछ दिया जाएगा आपको, और आप में एंटीबॉडीज डेवलप होगी, जैसा आपने बोला नीरज। तो वो चीज है। लेकिन इसमें इसका एक और सेकंड ये है कि आप ऐसे भी इम्यूनाइज हो ही जाएंगे कभी ना कभी। मतलब केवल यही थोड़ा सा है कि ओवरडोज ना हो जाए उस वायरस का, जो आपकी बॉडी झेल ना पाए। और इसी का इसी डर का फायदा उठा के ये पूरा वैक्सीनेशन इंडस्ट्री है। इनफैक्ट सारे बच्चों को इतना सारा वैक्सीनेशन लगता है। आई मीन वी डोंट नो एग्जैक्टली कि उसका कुछ साइड इफेक्ट होता है नहीं होता है आगे चल के एग्जैक्टली, बट एक डर है, एक कि अगर नहीं मानेंगे तो कहीं मेरे बच्चे को कुछ हो गया तो कैसे कैसे मतलब कैसे मैं मतलब उतना हिम्मत चैलेंज करने का नॉलेज नहीं है अपने पास, राइट। बट फार्मा इंडस्ट्री है, सब कुछ है, वो दान दक्षिणा करने के लिए तो बैठे नहीं है, ये भी बात सच है। पैसा कमाना ही है उनको। अब ग्रीड कितने ऊपर जाता है, दैट्स अ डिबेटेबल टॉपिक। मे बी अतुल सर, व्हाट डू यू थिंक अबाउट दिस? बताइए कुछ आपका। सॉरी, मैं फिर से किसी और डिस्कशन में मैं व्हाट्सएप पे बहुत सीरियस डिस्कशन, फिर से बोलिए क्या था? नहीं, ये वैक्सीनेशन इंडस्ट्री है जो, इसके बारे में बोल रहा था मैं कि कैन दिस आल्सो नॉट बी अ बिग सेमी स्कैम एट लीस्ट। हाँ, तो उस पे कुछ लोग का कहना है, आरोप लगाते हैं, और एक जमाने में मैंने भी उस आरोप का समर्थन किया था। बाद में मुझे भूल पता चली कि मैं उस इंडस्ट्री में काम भी करता था, यानी करता हूँ आज भी। हेल्थ केयर इंडस्ट्री में जब मैं जॉब करता था स्टार्टअप्स के पहले, तो जितनी जो हेल्थ केयर के जो इंश्योरेंस कंपनीज हैं यूएस की, और जितनी फार्मा कंपनीज हैं, वो मेरे क्लाइंट्स हुआ करते थी। एटना, सिग्ना, ये सब इंश्योरेंस कंपनी, और फार्मा कंपनी फाइजर एंड ग्लैक्सो, ये सारी, ब्रिस्टल मायर्स का, ये सब मेरे क्लाइंट्स थे। तो मेरा जो अंडरस्टैंडिंग अब है, आफ्टर ऑल दिस बैड एंड गुड बोथ साइड, कि फार्मा कंपनी का मॉडल इज बेस्ड ऑन कि लोग अगर बीमार पड़ेंगे तो उनको दवा बेचने का मौका मिलेगा, तो पैसा कमाएंगे। तो ये तो मॉडल है, बिजनेस मॉडल है। लेकिन एट द सेम टाइम वो मॉडल 100% इविल नहीं है। दुनिया की बहुत सारी बीमारियां खत्म हुई हैं बिकॉज ऑफ दवा के चलते। बहुत सारी जो बीमारियां लगती है खत्म ही नहीं होंगी, और वो जिससे लाखों लाखों मर जाते थे पुराने जमाना में,
प्लेग था, कॉलरा था, मलेरिया था, बहुत सारी दवाओं का इलाज मॉडर्न मेडिसिन ने किया है आज के फार्मा इंडस्ट्री के चलते। फार्मा इंडस्ट्री का प्रॉब्लम क्या है कि फार्मा इंडस्ट्री का जो मॉडल है वो थोड़ा एडिक्शन पे बेस्ड है, और अभी उसका जो लेटेस्ट एग्जाम्पल, इस पे काफी बात चल रही है कैलिफोर्निया में और दुनिया में, कि मेडिसिन जो है ना पेन किलर का भी काम करता है। बहुत सारी जो दवाई है आपके इलाज नहीं करती, बट आपको टेम्पररी रिलीफ दे देती हैं। ज्यादातर लोग दवा क्यों खाते हैं? क्योंकि उस समय उनको रिलीफ मिल जाता है, लेकिन वो दवा आपके रूट कॉज को नहीं करता है, वो आपके केवल सिम्टम को केवल आपके थोड़ी देर के लिए सब्सिडाइज करे। जैसे आपका मान लीजिए बह रहा है तो आपने उसके ऊपर एंटीसेप्टिक लगा दिया बैंड, तो आपका खून बहना बंद हो गया, वो टेम्पररी है। लेकिन लॉन्ग टर्म ट्रीटमेंट के लिए थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड और लंबा प्रोसेस होता है, होलिस्टिक ट्रीटमेंट चाहिए होता है कि अपना फूड चेंज करो, लाइफस्टाइल चेंज करो, एक्सरसाइज करो, योगा करो, प्राणायाम, ये सब करो। तो वो जो लॉन्ग टर्म वाली चीजें ज्यादातर लोगों के लिए मुश्किल होता है। हालांकि उसके लिए मैं रामदेव बाबा को बहुत क्रेडिट देता हूँ। रामदेव बाबा ने प्राणायाम को क्या कहते हैं गांव-गांव तक पहुंचा दिया। इसके पहले सबको पता था, योगा इंडिया से इन्वेंट हुआ हजारों साल पहले पतंजलि और लोगों ने, लेकिन रामदेव बाबा ने गांव-गांव तक एक मिडिल क्लास को भी योगा से फेमिलराइज करा दिया कि आप बस भस्त्रिका प्राणायाम कर लो, ये प्राणायाम कर लो और सूर्य नमस्कार कर लो तो सब ठीक हो जाएगा। तो वो जो मॉडल है ना, वो लॉन्ग टर्म सोल्यूशन है, लेकिन उसको ज्यादातर पब्लिक एक्सेप्ट उतना नहीं कर पाएगी। ज्यादातर लोगों को क्विक फिक्स चाहिए, और वहां पे फार्मा इंडस्ट्री थोड़ा उसका फायदा उठाता है कि आपको दवा बेच देगी, और दवा क्या है कि एडिक्टिव होता है। किसी आदमी को दवा खाने की आदत लग गई ना, तो आप देखो कि वो दवा के बिना रह नहीं पाएगा। थोड़ा सा भी कुछ प्रॉब्लम हुआ तो चलो एक पेन किलर ले लेते हैं, सर्दी खांसी हुई चलो एक दवा खा लेते हैं। लेकिन वो फार्मा इंडस्ट्री के लिए तो अच्छा है, लेकिन हेल्थ के लिए अच्छा नहीं है। उपाय क्या है? उपाय है जो मैंने बताया कि बहुत सारे सिस्टम है आपके, फिजिकल, मेंटल, इमोशनल, सोशल, फूड, उन सब पे। वो लंबा प्रोसेस है, टफ प्रोसेस है, वो ज्यादातर लोग उसमें फॉलो नहीं करना चाहते हैं। तो ज्यादातर लोगों के लिए एक शॉर्टकट चाहिए। और फार्मा का एक और बहुत इंपॉर्टेंट रोल, इसको डिनाई नहीं किया सकता है, या दवा इंडस्ट्री का, कि किसी का कट गया, खून बह रहा है, तो उस समय तो इमरजेंट अर्जेंट रिलीफ चाहिए ना उसको रामदेव बाबा का हो या किसी भी आयुर्वेद प्रोसेस हो सकता है फॉलो करने का, उसके पास फुर्सत नहीं हो। तो दैट टाइम यू नीड द मॉडर्न मेडिसिन जो है, इमीडिएटली कोई दवा हो या इमरजेंसी रूम में ले जाओ या अर्जेंट केयर में ले जाओ। तो वो सारी चीजें आज भी जरूरी है, मेरे ख्याल से रहेंगी। लेकिन लॉन्ग टर्म किसी को बीमारी है कि डायबिटीज है या अस्थमा है या जो भी लॉन्ग टर्म डिजीज है ना, उसके लिए मैंने खुद भी एक किया है। मैं जब जर्सी सिटी में था तो हमारे पड़ोस में एक आए थे, वो योगा के टीचर थे, केरला से आए थे, केरला के योगा के बहुत बड़े गुरु थे। तो उन्होंने, मेरे को अस्थमा का प्रॉब्लम बहुत ज्यादा होता था, कभी कभी एलर्जी सीजन में एलर्जीज और अस्थमा से। बट उन्होंने मुझे बोला कि मैं घर में आके, वो फ्री में मुझे रोज घर में आके 1 घंटा वो कराते थे, एक्सरसाइज कराते थे, और मैं ठीक हो गया। तो बोला कि बट ये ऑप्शन ज्यादातर लोगों के पास अवेलेबल नहीं है कि आपको बहुत रेस्पेक्टेड, रिलायबल, ऑथेंटिक योगा टीचर, क्योंकि ज्यादातर योगा टीचर फ्रॉड मिलते हैं, क्योंकि जिनको कुछ नहीं हुआ तो वो लोग योगा टीचर बन गए। जेन्युइन योगा टीचर खोजना बहुत मुश्किल है। तो इसलिए, सॉरी मैं लंबा आंसर देगा, बट ओवरऑल में कहना है ना कि ये जो फार्मा इज गुड फॉर इमीडिएट रिलीफ, बट लॉन्ग टर्म के लिए वी नीड टू गो फॉर अदर वेज, अदरवाइज फार्मा इंडस्ट्री इज डेंजरस फॉर हेल्थ। रामदेव बाबा जी के बारे में एक चीज बोलना चाहूंगा। उन्होंने नॉट ओनली योगा को जितना आगे बढ़ाया है, वो तो अपने आप में एक अच्छी चीज है ही, लेकिन रामदेव बाबा के ये पतंजलि जो भी दवाइयां जो आई हैं और आयुर्वेद के अराउंड जो उन्होंने प्रोडक्ट निकाले हैं, उससे पहले मतलब इंडिया में आयुर्वेद लग्जरी बन गया था। अगर आपको गिलोय चाहिए या कुछ ऐसा आंवला का जो कुछ भी होता है, जूस या कुछ भी, ये चीजें ढूंढने से नहीं मिलती थी, और मिलती थी तो बेहद महंगी रहती थी। डाबर के रेट्स इतने हाई होते थे आयुर्वेदिक प्रोडक्ट्स के कि मतलब आम आदमी को लग्जरी लगने लगी थी वो चीजें। उन्होंने उस चीज को बहुत रेवोल्यूशनाइज किया है, रेट्स को बहुत नीचे लेके आए हैं, और छोटे से छोटे आदमी तक उन चीजों को पहुंचाया है। तो इसमें मैं मतलब कहूंगा उनका बहुत बड़ा योगदान है अपने आप में, और कहीं ना कहीं फार्मर्स को फायदा हुआ है जो ये सब
हर्ब्स को उगाते हैं, वो अपने आप में एक नई इंडस्ट्री बन के आ गई है। तो रामदेव बाबा का योगदान बहुत अहम है पिछले कुछ 10-15 सालों में। हाँ, और नीरज की से एक पॉइंट पे मैं एक और ऐड करना चाहूंगा कि रामदेव बाबा ने क्या क्या डिस्टर्ब कर दिया। जो ट्रेडिशनल जो इंडस्ट्री थी ना, जो दवा वाली इंडस्ट्री, या रामदेव बाबा के योगा और उन्होंने हर्बल मेडिसिन बना के लोगों को याद दिला दिया। पर इसके पहले क्या था कि पुराने जमाने में हमारे यहाँ एक चारवाक ऋषि हुआ करते थे, तो उस जमाने पुराने जमाने में, और सुश्रुत होते थे, वो सर्जन भी थे, तो सर्जन भी थे, वो भी थे, बट वो नॉलेज एक तरह से गायब हो चुका था, क्योंकि ज्यादातर तो जो 1000 साल की गुलामी में हमारे सारे बुक्स जले आए गए, हमारा नॉलेज चला गया था। तो वो नॉलेज जो होता है ना, केवल कुछ एक्सपर्ट्स के पास था, जो मान लीजिए केरला में फैमिलीज के पास है, कुछ लोगों के पास, या मान लीजिए कि उस साइड में हिमालय के पास बहुत सारे लोग, तो आम जनता के पास वो नॉलेज अवेलेबल नहीं था। तो बीच में ये मौका मिल गया, धोखा देने वाले लोगों का आ गया नकली वाला। अब रामदेव बाबा ने मेन स्ट्रीम में ला दिया योगा को, आयुर्वेद को, और आयुर्वेद की दवाई भी बनाने स्टार्ट कर दी। वो भी दवाई कहाँ से? तो वो हिमालयन एरिया में, या हिमाचल में, या उत्तराखंड में, यहाँ उन्होंने अपनी फार्म्स लगा दी, उगाते हैं। तो लोगों को मेन स्ट्रीम, जो नीरज ने कहा कि मेन स्ट्रीम को अवेलेबल करा दिया एट अफोर्डेबल प्राइस। लग्जरी की जगह पे मास मार्केट में उन्होंने आयुर्वेदा और ऑल्टरनेटिव मेडिसिन, इनको ये लोग ऑल्टरनेटिव बोलते हैं बाहर में, ऑल्टरनेटिव मेडिसिन को मेन मेडिसिन के रूप में ऐड करने का बहुत बड़ा इवोल्यूशन ला दिया रामदेव बाबा ने। कल डिस्कस करते हैं। आई थिंक ये लाइफस्टाइल डिजीजेज और भी फार्मा का टॉपिक अपने में बहुत बड़ा टॉपिक है, तो बहुत सारे एस्पेक्ट्स हैं। अभी तो कुछ 2-4 चीज़ों के बारे में बात हुआ, इसको और कंटिन्यू करते हैं, लाइक एज अ फार्मा एज अ होल एज वेल एज फार्मा ड्यूरिंग कोविड। चलिए आज के लिए थैंक यू वेरी मच, गुड नाइट। थैंक्स विशाल।